हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Kashmir issue. There is the most important there Pakistan here the Kashmir issue. At the time of partition, Jammu and Kashmir was one of the several princely state. There are princely state. There is a fatal of which was left is uncontained in 1947. Pakistan desired that Kashmir with the Muslim majority population should be joined to the Muslim country, Pakistan. But the popular leader of the National Congress opposing Pakistan is ideology is a Maharaja Hari Singh did not take a decision until Pakistan sent the army introduced into the Kashmir Valley in October 1947 and seeking India's help to the repulsed Pakistani is introduced a Maharaja signed to the instrument of assumptions of making a Jammu and Kashmir a part of India Union. There is an Indian Union. On the occasion is the true is a Democrat. The Prime Minister Nehru is assumed to that a Pakistan aggression was a clear. The future state of the state would be decided on the basis of wish of the people of Kashmir. Saying the India did not want to the open clash with the Pakistan, it's a referred the matter to the United Nations. India forced save the Srinagar from the invaded as a push it to the back to the Pakistanis from to the Kashmir Valley. But the wall of Kashmir could not be easily captured, and the would we have to mean a direct and difficult war between two new nations. India is a South United Nations help in 1948. A ceasefire is come to the implemented on January 1, 1949. It's left a large part of Jammu and Kashmir near 2/5 of the state under Pakistan is a possession and which we are called Pakistan occupy a Kashmir. There is a POK, Pakistan occupy Kashmir means POK. There is a problem create a future, and in 1950 in the UNA mediator put a forward several plan to the resolve to the depth, but there is a fail to the breast to the difference between the two countries. There is the most important here. The problem of Kashmir is still pending. A plebiscite there was to be conducted only after Pakistan withdrew its force from the occupied territory. As per the UN resolutions of 1949, which the Pakistan refused to the comply with, is a hence the India is pledged that is a wish of the people where is accelerated in 1954 in the fourth of direct election of Constitution Assembly, and which is certified the allocation of Jammu and Kashmir to India. The meditation come to end Pakistan but spread to the capture Kashmir. The thinking that is India as army was weak after the depth in their war with the China in 1962. Pakistan tried through the war to take a Kashmir in 1965, but India force defeated to the Pakistan designs. The LOC mean there is a LOC. The ceasefire of line determined to 1949 was called to the LOC after 1972. Some people believe that a possible solution to the Indo-Pak problem on Kashmir is the conversions of LOC into the international boundary. Moreover, Pakistan is suffering another humiliations when it is the eastern wings. The 1,000 mile away from the West Pakistan successfully is waged independence struggle in 1971. India has played a key role in the war of the liberation of Bangladesh. The birth of Bangladesh is proved to be the final burial of the two-nation theory on the basis of which Pakistan put a claim to the Kashmir. Pakistan was reduced to 1/4 of the size of India. This is alternative to power equation in South Asia. India is a favor. In order to the normalize to relation, India is invited to the Pakistan for agreement, the result of which was the Simla Pact of 1972. The Simla agreement, however, the bear important significance as the two countries agreed to seek the settlement of all bilateral problems, including Kashmir, mutually without the interventions of any third party. Thus, the under is a Simla Pact
The Kashmir issue cannot be arise in the international or any other form. It thought that Pakistan has not hesitated to ignore the spirit of the agreement. The agreement also talk it about there is the return of prisoner of war, means POW. Through the Pakistan territories India is opposing was the return a new says and the fire line in place of the all says fire line of 1948 to 49 was drawn, which is known as the LOC. Pakistan found a way other than open war is the stabilizing to the India by the encouraging and the assisting of the terrorism in Punjab, and the state is a sponsor is a militancy in their Jammu and Kashmir signed mid 1980th century. The Pakistan still has continued to encourage the terrorist and the separatist or tendency in the Kashmir. The operating the mainly form of terrorist training campus is situated in a POK. The centricity of the LOC that come to be agreed upon between India and Pakistan under similar agreement of 1972 was validated by Pakistan in May 1989 as a part of big plan. And this was done when the Pakistan force infiltrated into the India after the crossing the line of the control of Kargil. The dust of battle leak of the sector of Jammu and Kashmir India Army once again give a as we fight it a defeat in the war that is a continue for about a 60 days. The purpose of Pakistan operation in a Kargil was to create a crisis with the threat of nuclear war, and which would be turned to the ensure intervention by the United States in their favor in a is a Kashmir gesture. Neither the United States is nor a China has come to Pakistan's help. In fact, Pakistan had a diplomatic and military defeat. आगे जो है कश्मीर विवाद, देखिए भारत जो है हमेशा ही कश्मीर विवादों को जो सुलझाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दो रवैये के कारण इसका कभी भी जो है विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया है। विभाजन के समय जम्मू और कश्मीर उन राजवारों में से एक था जिन्हें 1947 में अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के जितने भी राज्य हैं किसी न किसी राजवारों के अंतर्गत था, लेकिन कहते हैं बबल भाई पटेल जी के और जो है नेहरू जी के जो है कोशिशों के वजह से जो है ये काफ़ी एक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाकिस्तान ने इच्छा जताई कि मुस्लिम बहुल्य होने के कारण कश्मीर को एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता ने पाकिस्तान को इस विचार का विरोध किया। महाराजा हरि सिंह ने तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जब तक पाकिस्तान ने 1947 में अपने सशक्त घुसपैठियों कश्मीर में उतार दिए। पाकिस्तान घुसपैठियों को निष्फल करने के लिए महाराजा ने भारत को सहायता मांगी और अधिकांश यंत्र पर हस्तक्षेप भी किया कि कश्मीरी भारतीय संघ का एक हिस्सा बन जाए। और इस अवसर पर एक सच्चे लोकतांत्रिक नेता की तरह प्रधानमंत्री नेहरू ने यह विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान द्वारा युद्ध की समाप्ति घोषणा के बाद राज्य की स्थिति जो है कश्मीर वासियों की इच्छा के आधार पर तय होगी। पाकिस्तान के साथ भारत एक खुला टकराव नहीं चाहता था। अंत उसने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के हवाले कर दिया। भारतीय सेनाओं ने घुसपैठियों को श्रीनगर से बचाया तथा पाकिस्तानियों को कश्मीर घाटी से खदेड़ दिया, परंतु संपूर्ण कश्मीर पर भारत द्वारा पुण्य कब्जा नहीं किया जा सका क्योंकि इसका अर्थ दोनों देशों के बीच एक आमने सामने का भीषण युद्ध होना था। इसलिए भारत ने जो है यहाँ पर इंटेलिजेंसी दिखाई और ये जो थी संयुक्त राष्ट्र की सहायता मांगी गई और इसको संयुक्त राष्ट्र को जो है सौंप दिया गया और 1 जनवरी 1949 को जो है युद्ध आराम की घोषणा भी की गई और इससे जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग राज्य का लगभग जो है 2/5वां भाग पाकिस्तान के अधिकार में रह गया, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसको हम साधारण शब्दों में POK के नाम से जानते हैं। 1950 में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता से इस विवाद को सुलझाने की कई योजनाएं बनाई गई, परंतु दोनों देशों के बीच अंतर पैटर्नों में विफल रहे, यानी कभी भी इन दोनों देशों में जो है बात नहीं बन पा रही है। कहते हैं पाकिस्तान जो है सदैव कश्मीर मिल जाने के बाद भी कश्मीर के ही नाम अलापता रहता है। कहते हैं 2/5वां भाग जो है POK वो पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी जो है उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। आए दिन जो है आतंकवादी गतिविधियां चलती ही रहती है। कश्मीर की समस्या अब भी जो है विचाराधीन है और संयुक्त राष्ट्र के जो है 1948 में निर्णय के अनुसार पाकिस्तान द्वारा
अधिग्रहित क्षेत्र से उनकी सेनाओं को हटाने के बाद वहां पर जनमत से निर्णय लिया जाना था, जिसे पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। अंततः भारत ने अपील की कि 1954 में सीधे चुनाव द्वारा इस क्षेत्र में लोगों की इच्छाओं को जानने का प्रयास किया जाए। इसे जम्मू कश्मीर के भारत में विलय संतोषजनक ढंग से कर दिया गया। मध्यस्थता के सुझाव का अंत हो गया। पाकिस्तान कश्मीरी अधिग्रहण के लिए अधीर था। यह सोच कर कि 1962 में चीन युद्ध के बाद भारतीय सेना कमजोर हो गई थी, पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर को वापस लेने के लिए युद्ध छेड़ दिया, परंतु भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के प्रयासों को विफल कर दिया। यहाँ पर बात एक आती है नियंत्रण रेखा यानी LOC। कहते हैं 1949 में निर्धारित युद्ध विराम रेखा 1972 के बाद नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है, और कुछ लोग मानते हैं कि भारत पाक की कश्मीर समस्या का संभव हल इस नियंत्रण रेखा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदल देने में ही हो सकता है। इसके बाद पाकिस्तान को एक बार और मुँह की खानी पड़ी, जब उसकी पूर्वी पाकिस्तानी शाखा को जब 1000 मील दूर इसकी पश्चिमी शाखा बिग ने 1971 में स्वतंत्र संघर्ष आरंभ कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। बांग्लादेश के जन्म ने सिद्ध कर दिया कि द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर कश्मीर पर पाकिस्तान के अधिकार के दावों का अंत था। पाकिस्तान का आकार अब घटकर भारत के आकार का 1/4 मात्र रह गया। इससे दक्षिण एशिया में शक्ति समीकरण को भारत के पक्ष में कर दिया गया। देखिए, ये बात बहुत जरूरी था। पहले बांग्लादेश जो था पाकिस्तान का पार्ट था, क्योंकि ये भी एक मुस्लिम राष्ट्र था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा भाषाई आधार पे बांग्लादेश को परेशान करने के कारण बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, और इससे उसने भारत से मदद मांगी, और भारत ने बखूबी मदद भी की, और ये पाकिस्तान से अलग हो गया और एक विस्तृत राष्ट्र के रूप में अपना सम्मान बरकरार रखा। कहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट था बांग्लादेश के लिए कि पाकिस्तान से अलग होके ही वो एक अच्छा राष्ट्र बन सकता था। संबंधों को सामान्य करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को एक समझौता के लिए आमंत्रित भी किया, जिसके फलस्वरूप 1972 में शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी इन बातों को सही रूपरेखा देने के लिए भारत ने मैत्रीपूर्ण संबंध हाथ बढ़ाया, जिसको शिमला समझौते के नाम से भी जाना जाता है। शिमला समझौता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि किसी तीसरे के हस्तक्षेप के बिना वे कश्मीर सहित अपनी सभी समस्याओं का परस्पर हल ढूंढ लेंगे। ये कश्मीर समझौता का यानी शिमला समझौता का सबसे टर्निंग पॉइंट था। इस प्रकार शिमला समझौता के अंतर्गत कश्मीर मामले को किसी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में नहीं उठाया जा सकता था। हालांकि पाकिस्तान ने इस समझौते के मूल्य तत्व को नकारते में हिचक नहीं दिखाई। समझौते के अनुसार युद्ध बंदियों को लौटने के बात कही गई थी, यद्यपि भारत ने अधिकृत पाकिस्तान क्षेत्र को लौटा दिया तथा एक नई युद्ध विराम रेखा लगाई गई। कहते हैं 1948 से 49 में खींची गई पुरानी युद्ध विराम रेखा के स्थान पर था और खींची गई जिसे नियंत्रण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। परंतु पाकिस्तान ने खुले युद्ध के बजाय पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा और सहायता देकर तथा जम्मू कश्मीर के राज्य समर्थन आतंकवादी गतिविधियों द्वारा 1980 के मध्य में से अब तक भारत को खंडित करने के रास्ते ढूंढते ही जा रहा है। और पाकिस्तान अब भी पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्र में चलाए जा रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों द्वारा कश्मीर में आतंकवादी और पृथक करने वाली प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। नियंत्रण रेखा की पवित्रता कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता के अंतर्गत निर्धारित की गई थी, इसका मई 1999 में एक बड़ी योजना के अंतर्गत पाकिस्तान को उल्लंघन किया और यह पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा कारगिल ड्रस और बैतलिक क्षेत्रों में भारत में घुसपैठ द्वारा किया गया। भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर लगभग 60 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में पाकिस्तानियों को पराजित कर दिया और कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ का उद्देश्य नाविकीय युद्ध की चेतावनी का संकट उत्पन्न करना था, जिसके द्वारा सरकार विवादों का संयुक्त राष्ट्र के पक्ष को अपने पक्ष में कराने के निश्चित करना था। सौभाग्यवश संयुक्त राष्ट्र और न ही चीन ने पाकिस्तान की सहायता की। वास्तव में पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य पराजय था। कहते ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था जहां पर संयुक्त राष्ट्र ने भी और चीन ने भी पाकिस्तान को नकार दिया था। The next topic is here a boundary as a rupture between India and China. The 1950 as were marked by the boundary is rupture between the India and China.
the flashpoint of which the unfortunately causing a bar between the two countries in 1962. China is the first started to claim the large part of Indian territory in the northern East Frontier Agency, means NEFA, Northeast Frontiers Agency. Now the Arunachal Pradesh and Ladakh by publish a map in which this were shown on the included in China. The China is continually extending its border and also constructed as a 110-mile long road across the Kasai China area. There is a Ladakh area of India in the 1956 to 57. In 1959, the China put a claim to the some 50 uppa is square mile of India territory and also denied there is the validity of the MC Mohan line. The MC Mohan line there is the most important. The China is a cover. What do you mean to the MC Mohan line? Mohan line there is the most important. This is a boundary line between India and China. East of Bhutan, it was determined in 1914 at the Conference of Representatives of British India. The Tibet and China, there is Secretary of State of India in the British Cabinet. And Arthur Henry is a MC Mohan represented British India in a conference. By the time the Tibet has been fully integrated into China, it was in a strong position at the Indian-China border with the Chinese troopers and posted all along. Well, the two countries were in the depth over to the MC Mohan line issue. China is launched a massive attack on India as October 1962 in the NEFA as well as the Ladakh sector. After the overrunning large area of India's territory, China announced a unilateral ceasefire after occupying hug and territory of India 200 square mile in the northern eastern sector and 15,000 square mile in Ladakh. After the attempt to work out a peaceful settlement between the two countries was made by Sri Lanka. The Colombo proposal failed because China refused to agree on conditions containing them. For long in their year following the war, China-India relations do not show any improvement. In fact, China went out of the way to make friends with Pakistan just to isolate and contain of India. There is the next topic arrive here, a normalization of relation. There is the most important. I thought there is the two countries resumed a diplomatic relation in 1976 by the exchanging ambassadors and the effort of the normalization of Sino-India relations received a boost when their Prime Minister Rajiv Gandhi paid a successfully 5-day visit to China in 1988. The two countries pledged to settle their border disputes through the dialogues. Several high-level visits followed, including visit by the ex-Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in 2003, and the two countries agreed to keep the border disputes apart and develop a friendly relation in other fields. Until their border disputes in the resolve, both countries agreed to the maintain pace and tranquility of the line of actually control, mean LAC. That is the most important here. One could see a clear shift in the Chinese attitude toward India. The fact that still there is a USSR has amended offense with the China. There were no more apprehensions from to the south. Moreover, China as a post-1979 economical transformation demanded big market for its massive productions under economical liberalization. The President Xi Jinping's visit to India in 1996 witnessed a major consolidations of this progress. And this was the first ever visit of China as a head of the state to India. China withdrew support to the Naga and Mizo rebel. Meaningful, they are silent to the state of Sikkim. China is considered a Sikkim state as that of the independent state. And the naturally stand on the Kashmir issue could be seen on positive shift in the Chinese attitude toward to the India.
There is nervousness is there, or suddenly a very is a setback in the mutual ties of the two after their nuclear explosion by India during to 1998, and this were to follow by the sharp Chinese reactions, and it's leading to the role of getting to the solution and condemning. There is a test in the UN and similar fora and passes, and this test by the China were seemed to neutralizing on Chinese promise in the region, and but the Chinese poster of the neutrality of during to the Indo-Pak military showdown in a Kashmir. The Kargil sector 1999 is expected to the China inclination to be a toy to the softer and friendly line with their India. In fact, China is a refusal to interfere in the conflict of force Pakistan to cessation of the hostility with the India. However, ex-Prime Minister Atal Bihari Vajpayee as a 2003 visit to China is a renewed effort in the promotions of close and cordial ties between the two the world. There is a border agreement has recognized the is a Nathula Pass in the Sikkim is a border pass, implying that China no more consider Sikkim as on the independent state. Another positive breakthrough was the joint declaration that underlined the need of exposure of framework of the boundary and settlement of political level of bilateral relation. And this is on is acknowledgement that is a key issue in the resolving the depth of the political. And this is a seen to the Benazi's willingness to give up. It is a policy of delaying dialogue. India is a national security advisor, and China vice minister has been appointed by the holding the task. The development at the diplomatic and political level has been to the supplemented by fresh initiatives at the economical level to strengthen a bilateral relation. And the border trade between India and China has crossed a $10 बिलियन क्विकली। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। देखिए, भारत और चीन के बीच जो है सीमा विवाद सदैव लगा ही रहा है। कई न कई कारणों से भारत से जो है हमेशा चीन पंगा लेता ही रहा है और चीन को मुंह की खानी हमेशा पड़ी है। कहते 1950 के दशक में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद से चिन्हित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्भाग्यवश दोनों देशों के बीच 1962 में युद्ध भी हुआ था, जो कि बहुत काफी भयंकर युद्ध थी। सबसे पहले चीन ने भारतीय क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट और फेयर्स एजेंसी जो अब अरुणाचल प्रदेश है लद्दाख पर अपने अधिकार का दावा प्रस्तुत किया था और ऐसे मानचित्र प्रकाशित किए जिनसे उन्हें चीन के भाग प्रदर्शित भी किया गया था। और चीन हमेशा ऐसा ही प्रदर्शित करते हैं। कई हालों में भी आपने न्यूज में देखा होगा कि चीन ने जो है भारत के कई पार्टों को अपने देश का पार्ट बताया भी है मानचित्रों में, जो कि सही नहीं है और इस वजह से सदैव ही विवाद बनी रहती है। चीन ने अपनी सीमा के विस्तार को निरंतर बनाए रखा, यानी सदैव ही जो है ये अपनी सीमा के विस्तार पे लगा रहता है। कहते हैं 1956 से 57 में जो है 110 मील लंबी सड़क बनाई जो अक्साई चीनी क्षेत्र भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर जाती थी। और 1959 में चीन ने भारतीय क्षेत्र को 51,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया था, जहां पर मैकमोहन रेखा की वैधता को भी नकार दिया था। कहते हैं चीन इस तरह के जो है अखंडे अपनाता ही रहता है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सदैव ही उसको मुंह की खानी पड़ती है, ये भी अच्छी बात है। यदि आपको लग रहा होगा कि मैकमोहन रेखा होती क्या है, तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि यह भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, जिसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जो भूटान से पूर्व में है और ब्रिटिश भारत चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच जो है 1914 में हुई एक गोष्ठी में इसका निर्धारण भी किया गया था। ब्रिटेन कैबिनेट में भारतीय सचिव आर्थर हेनरी मैकमोहन में गोष्ठी में ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व भी किया गया था। तो ये आपको समझ होना चाहिए कि मैकमोहन रेखा क्या होती है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। इस समय तक जो है तिब्बत चीन एक अंग बन चुका था, जो अब भारत चीन सीमा पर एक मजबूत स्थिति में था। वहां चारों ओर चीनी सैनिक थे। जब दोनों देशों के बीच मैकमोहन रेखा पर विवाद चल रहा था,
तो चीन ने नेफा यानी NEFA और लद्दाख सेक्टर में अक्टूबर 1962 में भारत पर आक्रमण भी कर दिया था। कहते हैं ये आक्रमण बहुत ही दुखदायक था, जिसमें जो है चीन को जो है मुंह की खानी पड़ी थी। भारत जैसे बहुत बड़े भाग और चीन के भारत के उत्तर पूर्वी के भाग के 200 मील और लद्दाख में 15,000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा जमा कर अकेले ही एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा भी कर दिया था। दोनों देशों को आपसी सहयोग के लिए जो है शांतिपूर्ण समझौता कराने का एक असफल प्रयास श्रीलंका द्वारा भी किया गया था। यानी श्रीलंका ने दोनों देशों के बीच जो है अच्छे संबंध बनाने की कोशिश भी किया गया था। कोलंबो के प्रस्ताव को चीन ने प्रस्ताव में रखी शर्तों के कारण ठुकरा दिया था और यह प्रयास विफल भी हो गया था। और युद्ध के बाद अनेक वर्ष तक चीन और भारत के संबंध में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। कहते हैं ये हमेशा ऐसा ही होता रहा है। वास्तव में चीन ने भारत को अलग करके पाकिस्तान के साथ मित्रता बढ़ाने का रास्ता खोजा है। अगर आप वर्तमान में देखोगे तो इसका संबंध जो है पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा है, लेकिन भारत के साथ सदैव ही कुछ न कुछ गतिविधियां के वजह से जो है चीन को जो है मुंह की खानी हमेशा पड़ती है। उसके पश्चात है संबंधों का समानीकरण। देखिए, संबंधों का समानीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और चीन के संबंध जो है उतार चढ़ाव की एक सीमा के अंतर्गत आता है। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध 1976 में राजदूतों के परस्पर विनिमय पर सामान्य हुए। कहते हैं कई बार राजदूत और प्रधानमंत्री के जो दौरा था, जिसके वजह संबंध काफी मजबूत बनाने की कोशिश भी किया गया, लेकिन चीन के द्वारा गलत तरीके रूल रेगुलेशन की वजह से ये सदैव ही रिश्ता टूटते ही रहे हैं। भारत चीन संबंधों को 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 5 दिवसीय चीन यात्रा के बाद काफी प्रोत्साहन भी मिला था और दोनों देशों ने वार्ता द्वारा सीमा विवाद को हल करने की पेशकश भी की थी। उसके बाद कई अन्य उच्च स्तरीय यात्राएं भी शुरू हुई, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में चीन यात्रा किया था और कई बातों पे हस्तक्षेप भी हुए थे। सीमा विवाद को अलग रखकर दोनों देशों ने अन्य क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध के विकास की स्वीकृति भी दी थी। जब तक कि सीमा विवाद को निपटारण हो, दोनों देशों में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LOC पर शांति और संयम कायम रखने की सहमति भी जताई गई थी। कहते हैं ये बात तो वही रहती है, सिर्फ ये चाल थी। कहते हैं ऐसा शांति कभी भी चीन की तरफ से देखने को नहीं मिला। अब भारत के प्रति चीन के रुख में स्पष्ट अंतर आ गया है। इसका प्रमुख कारण था कि पूर्व के सोवियत संघ से चीन का संबंध बिगड़ना। कहते हैं सोवियत संघ शुरू से ही भारत का मित्र रहा है और सोवियत संघ और चीन का संबंध जो है बिगड़ गया है। इस वजह चीन जो है अब डरता है कहीं भारत और सोवियत संघ मिलकर चीन पर जो है आक्रमण न कर दे। इसके अतिरिक्त 1979 के बाद चीन के आर्थिक बदलाव में बड़े उत्पादन को एक बड़ी बाजार की आवश्यकता थी। ये बाजार जो था इंडिया ही दे सकता था। कहते हैं चीन के पास बहुत चीजें उत्पादन थी, लेकिन इस उत्पादन को बेचने के लिए एक बहुत बाजार चाहिए था, बहुत बड़ा बाजार चाहिए था। वर्तमान समय में आपने देखा भी होगा कि चाइना की बहुत सी चीजों को जो है भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था और इसको मुंह की खानी भी पड़ी है और कहते हैं इससे उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती ही चली जा रही है। चीन के राष्ट्रपति जिनगोंग जेमिन्स की 1996 में भारत यात्रा इन मैत्री विकास के केंद्र बिंदु मानने की गवाह भी बनी थी। चीनी राष्ट्राध्यक्ष की यह सबसे पहली भारत यात्रा भी थी। नागा और मिजो विद्रोह के चीन द्वारा सहायता देना बंद भी कर देना सिक्किम जिसे चीन का एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता था, इसे चीन के मौन रुख द्वारा एक अच्छे संकेत भी दिए हैं। यही नहीं, कश्मीर के मामलों को लेकर भी चीन ने निष्पक्ष रूप अपनाया है, जो मित्रता का सकारात्मक पहलू माना गया है। भारत के द्वारा 1998 में किए गए नाभिकीय विस्फोट के बाद दोनों देशों के संबंध में अचानक ही एक अल्पकालीन सक्रियता आ गई। इसके बाद चीन की तीखी प्रक्रिया यही आई। संयुक्त राष्ट्र और अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं ने इस प्रकार के परीक्षणों को निंदा करने के प्रस्ताव को अनुमोदन करने में चीन ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। भारत के द्वारा किए गए इन परीक्षणों को इस क्षेत्र में चीन को बढ़ते प्रभाव एक आघात के रूप में देखा गया। परंतु 1999 में कश्मीर कारगिल में भारत पाक सैन्य क्षमताएं प्रदर्शन मामले में चीन के उदासीन रवैये ने चीन के भारत के प्रति नर्म मैत्रीपूर्ण रवैया के स्पष्ट कर दिया। वास्तव में इस संघर्ष में चीन द्वारा हस्तक्षेप से मना करने से पाकिस्तान को भारत से युद्ध बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2003 में चीन यात्रा दोनों पड़ोसियों के बीच घनिष्ठ और हार्दिक संबंधों को बढ़ावा देने का एक नवीन प्रयास भी किया गया था और सिक्किम में नथुला पास को सीमा समझौता के अनुसार सीमा माना गया और सिक्किम को चीन अब एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानता है। दोनों देशों ने सीमा विवाद को राजनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों के द्वारा सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और इस बात की स्वीकृति भी है कि विवादों को राजनीतिक तरीके से हल किया जा सकता है। इस बर्ताव में देरी करने से बीजिंग के रुख को इस मुद्दे को छोड़ देने के रूप में देखा गया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के उप मंत्री इस वार्ताओं को करने के लिए नियुक्त किए भी गए थे और राजनीतिज्ञ और राजनीतिक स्तर के कारण विकास पर आर्थिक दिशा में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के पहल को और बल मिल गया। भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार ने जो है $10 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया। देखिए दोस्तों, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, भारत और चाइना। देखिए, भारत जो है सदैव ही मैत्रीपूर्ण संबंध हर एक देश के साथ करना चाहता है, लेकिन चीन जो है समय समय पे भारत को तकलीफ देता रहता है, कभी सीमा विवाद में तो कभी सीमा बढ़ाने के विवाद में। कुछ दिन पहले ही से जो है भारत और चीन में जो है युद्ध की एक कड़ी देखने को मिला, जब वहां पर जो है आपस में ही कुछ जो है सिपाही लड़ने लग गए थे। तो ये हमेशा जो है चाइना भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है।